Hello and welcome to Ayu Pathshala. We are discussing the first topic, or that is the basic telecommunication concept for the senior executive trainee examination being conducted by the BSNL. आगे बढ़ने से पहले let me inform you कि for those students or friends who are preparing seriously for state public service examination or for any civil service examination being conducted by any state, किसी भी state का इंडियन पॉलिटी इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट एंड हम लोगों ने कोशिश किया है वी हैव ट्राइड टू explain the Indian polity right from very scratch, very beginning, and going deeper into the subject. Two courses available on our mobile application. Ayu Pathshala can be downloaded from the Google Play Store. And आप देखिए कुछ videos which are available on the YouTube also as a demo. You can check that also. And for the complete course, you can visit our mobile application. So let us quickly recap what we have completed up till now. Up till now, we have seen the basic signals wherein we have seen the different types of signals such as the continuous and discrete signal, even and odd signal, periodic, aperiodic signal, energy signal and power signals. We have seen the differences of operations such as time shifting, time scaling. What are the different other signals such as the ramp signal, their properties, step signals, their properties, impulse signal, its properties, signum function, as well as the sync function. Now, today we are going to start with the modulation technique and we're going to understand what do you mean by modulation. So let us begin. So पहले categories देख लेते हैं कि what would be the different types of modulation and then we will start discussing each type of modulation one by one. तो मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है अल्ट्रेशन एक तरीके से इंग्लिश मीनिंग अगर देखें तो यू कैन सी द पिक्चर ओवर हियर वेर इन यू कैन सी देयर इज द what we say this is the message signal taking as the assigned studio signal which we have seen in the previous videos, and then this is the carrier signal. Obviously you see the frequency of this signal is lesser, the frequency of this signal is higher, and we have seen कि वॉइस सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होता है, ऑब्वियसली वो हम ट्रांसमिट नहीं करेंगे, तो हमें एक हायर सिग्नल में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो एक कैरियर लेते हैं जो कि जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है और इस सिग्नल को इस कैरियर के ऊपर मॉड्यूलेट कर देते हैं। तो ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल कुछ इस तरीके से होगा जहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि दिस इज द बेसिकली एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड वी विल सी दैट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका मैसेज सिग्नल है, लेकिन इट इज ट्रैवलिंग ओवर दी कैरियर, कैरियर के ऊपर ट्रैवल कर रहा है, ये कैरियर है ना, ये सारा कैरियर, और उसके ऊपर आपका मैसेज सिग्नल ट्रैवल कर रहा है। तो ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है जो हम देखेंगे, लेकिन लेट अस क्विकली गो एंड कैटेगराइज व्हाट वुड बी द डिफरेंट मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन में हम जैसे कंटिन्यूअस टाइम डोमेन में हमने देखा कि कंटिन्यूअस सिग्नल है और डिस्क्रीट सिग्नल है, उसी तरीके से वी हैव टू टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन, वन इज कॉल्ड द कंटिन्यूअस मॉड्यूलेशन एंड अनदर इज कॉल्ड द पल्स मॉड्यूलेशन। पल्स मतलब pulses we have seen na, pulse, impulse signal we have seen, so pulse modulation for discrete domain, for digital domain. So when we go to the continuous modulation, we have the amplitude modulation, and we have the angle modulation. In angle modulation we have the frequency modulation, we have the phase modulation. In amplitude modulation we have the amplitude modulation, that is the double sideband suppressed carrier, single sideband, and vestigial sideband. All these are different types of modulation that we have to understand, we have to see. Also some small numericals may be asked from this topic. If numerical अगर कहीं से आएगा तो देखो ये इसी टॉपिक से numerical आएगा स्मॉल स्मॉल, बाकी बाकी के जो रिमेनिंग टॉपिक्स है उनसे कोई numerical नहीं, वो सारा theoretically टॉपिक है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि जहाँ पर न्यूमेरिकल्स की बात होती है वहां पर ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड, तो इसलिए वहां पर हम लोगों को थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा यहाँ पर। लेकिन आने वाले जो भी टॉपिक्स है सारा थियोरेटिकल टॉपिक्स है, बस समझते जाना है और थियरी बेस्ड अंडरस्टैंडिंग करते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर बेस बैंड मॉड्यूलेशन होगा और बेस बैंड मॉड्यूलेशन, और दूसरा होगा बैंड पास मॉड्यूलेशन। बैंड पास मॉड्यूलेशन के अंदर हमारे पास एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग आएगा, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग आएगा और फेज शिफ्ट कीइंग आएगा। और बेस बैंड मॉड्यूलेशन के अंदर हमारे पास पल्स कोड मॉड्यूलेशन आएगा और डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन। उसके बाद होगा हमारा डेल्टा मॉड्यूलेशन,
एंड अडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन एडी। तो अब कैसे करेंगे? व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दी नॉट ईच एंड एवरी मॉड्यूलेशन को हम डिटेल में समझने की कोशिश नहीं करेंगे, है ना। क्या करेंगे, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को हम समझेंगे अच्छे से, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को अच्छे से समझ लेंगे। उसके बेसिस पर हम एएम समझ लेंगे, तो उसके बेसिस पे डीएसबी, एससी, एसबी, एसएसबी और पीएसबी ये सारा करेंगे, ठीक है। इसको समझेंगे, उसी के बेसिस से इन सब का क्या फॉर्मूलाज होगा, क्या बैंडविड्थ है, सारा कुछ इसमें से डिफाइन करेंगे। सिमिलरली फेस मॉड्यूलेशन को भी हम सिंपलर टर्म्स में समझेंगे और उसी से सॉरी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और उसी से फेस मॉड्यूलेशन करेंगे। जब हम फेस मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन समझ जाएंगे, तो उसके बाद ये दोनों टॉपिक अंडरस्टैंड करने के बाद एएसके, एफएसके और पीएसके समझना आसान हो जाएगा। तो हम इसको डेरिवेशन के साथ नहीं समझेंगे, जस्ट फॉर्मूला और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही समझेंगे। यहाँ पर पीसीएम को हमको समझना होगा थोड़ा डिटेल में, ताकि उसके बेसिस पे डीपीसीएम और डीएम और एडीएम को आसानी से समझ पाए। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद द मॉड्यूलेशन टॉपिक। तो यहाँ पर मैसेज सिग्नल हमने कैसे लिया, साइनसोइडल लिया। हम इसके जगह में कुछ भी और डिफरेंट भी मैसेज सिग्नल दे सकते हैं, बट फॉर सिंपलिसिटी वी टेक इट एज साइनसोइडल, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मॉड्यूलेशन क्यों जरूरी है, मॉड्यूलेशन क्यों जरूरी है, व्हाई मॉड्यूलेशन इज रिक्वायर्ड। तो वी हैव सीन वन ऑफ द पॉइंट इन द प्रीवियस वीडियोस, दैट इज फॉर रिड्यूसिंग द हाइट ऑफ द एंटेना, फॉर रिड्यूसिंग द एंटेना हाइट, है ना। वी हैव सीन दिस इन द इंट्रोडक्टरी वीडियो। और इसके बाद दूसरा क्या है, मल्टीप्लेक्सिंग। वी हैव सीन, मान लो कि दिस इज पर्सन पी वन, पर्सन पी टू। तो पर्सन पी वन का रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी मान लो कि मैं बात कर रहा हूँ, मेरी फ्रीक्वेंसी रेंज कर रही है 50 हर्ट्ज से मान लो 1 किलो हर्ट्ज, 1000 हर्ट्ज तक मेरी फ्रीक्वेंसी रेंज कर रही है। और इसकी फ्रीक्वेंसी भी पी टू की फ्रीक्वेंसी ये थोड़ा सा ज्यादा लाउडर पिच में बात करता है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज से लेकर के 1500 हर्ट्ज के बीच में रेंज कर रही है, ठीक है। तो मेरे मैसेज का मान लो ये मेरा मैसेज सिग्नल है एम वन ऑफ टी। तो मेरे मैसेज सिग्नल का रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, 50 हर्ट्ज टू 1000 हर्ट्ज। तो व्हाट इज बैंडविड्थ ऑफ माय मैसेज सिग्नल, दैट इज M1T। बैंडविड्थ निकालने के लिए हमें हायर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी किसी भी मैसेज का निकाल करके सबट्रैक्ट कर दो, बैंडविड्थ मिल जाएगा, है ना। बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्या क्या बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो मेरा बैंडविड्थ है वो 1000 हर्ट्ज से 50 हर्ट्ज है, यानी कि 950 हर्ट्ज का मेरा बैंडविड्थ है। और यहाँ पर अगर M2 की बैंडविड्थ निकालेंगे, M2T का बैंडविड्थ, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितना है, 1500 हर्ट्ज माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कितना है, 100 हर्ट्ज। तो यहाँ पर M2 का बैंडविड्थ थोड़ा ज्यादा है मेरे से, दैट इज 1400 हर्ट्ज, ठीक है। 1400 हर्ट्ज हो गया। तो अभी देखो 950 हर्ट्ज M1T है और 9 1400 हर्ट्ज है M2T का बैंडविड्थ। अब मैं मान लो कि इसको ऐसे ही भेज देता हूँ, तो ऑब्वियसली बात है, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, मान लो ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। कुछ ऐसा सिग्नल होगा, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी मान लो यहाँ है 50 हर्ट्ज और यहाँ है 1000 हर्ट्ज। और मान लो कि कुछ दूसरा सिग्नल है, उसका भी मैं ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और इसका फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर कितना, 100 हर्ट्ज, और यहाँ पर मान लो 1500 हर्ट्ज। और ये वाला डोमेन है आपका 50 हर्ट्ज और ये है 100 हर्ट्ज। तो ऑब्वियस सी बात है कि 50 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज के बीच में ये दोनों सिग्नल आपस में ओवरलैप कर जाएंगे और इंटरफेयर कर जाएंगे। लास्ट में हमने मैथमेटिकली भी इसको समझने की कोशिश की थी। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों सिग्नल जो एंड में रिसीव होगा, वो यहाँ से यहाँ तक यूनिकली रिसीव होगा, लेकिन इस वाले डोमेन में इंटरलैप हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा ये दोनों सिग्नल, और इंटरफेरेंस हो जाएगा, कुछ अलग ही सिग्नल मिलेगा। और यहाँ से फिर जो सिग्नल जहां पर इंटरफेरेंस नहीं हो रहा, वो आपको ठीक ठाक मिलेगा। तो इंटरफेरेंस हो रहा था, इसका एक सॉल्यूशन क्या है कि हम इसको कैरियर को दे दे 5 मेगाहर्ट्ज को, और इसको दूसरा कैरियर ले ले 6 मेगाहर्ट्ज। तो अब जब 5 मेगाहर्ट्ज पे आप चला जाएगा, 5 मेगाहर्ट्ज तो मतलब 10 to the power 6 हो गया, अंडरस्टैंडिंग के लिए आप समझ लो इसको 5 किलोहर्ट्ज कर देते हैं। तो अगर मैं इसको कैरियर को 5 किलोहर्ट्ज, लेकिन किलोहर्ट्ज में भी हमारा एंटीना का हाइट वाला प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। हमें हमने देखा था कि हमें रेंज 10 to the power 6 के अराउंड लेके जाना है, तभी एंटीना का हाइट हम मैच कर पाएंगे, है ना। लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए मान लो 5 किलोहर्ट्ज ले लिया हमने। तो अगर 5 किलोहर्ट्ज ले लेंगे, तो ये अब इस मैसेज को हमने जो 5 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है उसके अराउंड मूव करेंगे, इस फ्रीक्वेंसी को दे दिया 5 किलोहर्ट्ज को। तो अपर कितना हो जाएगा, 5100 से लेकर के, और यहाँ पर आपका 5500 तक होगा। 5050 से, है ना, और 50, इसको 1 किलोहर्ट्ज में मैंने दे दिया 5050। तो 1 किलोहर्ट्ज पे सारे सारे जो फ्रीक्वेंसीज है उनको मैंने कैरियर के फ्रीक्वेंसी के साथ में ऐड कर दिया।
कैरियर फ्रीक्वेंसी हमारा कितना है 5 किलोहर्ट्ज, तो लोअर वाला कितना हो जाएगा 5050 पे, और अपर वाला कितना हो जाएगा 5100 पे। और यहाँ पर अगर हम 6 किलोहर्ट्ज पे ऐड करेंगे तो लोअर वाला कितना हो जाएगा 6100, और अपर वाला कितना हो जाएगा 6150। अब देखो दोनों का फ्रीक्वेंसी रेंज डिफरेंट हो गया, डिफरेंट हो गया ना, तो अब ओवरलैपिंग नहीं होगा, इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो इसलिए मॉड्यूलेशन का एक इंपॉर्टेंट टेक्निक क्या है, मल्टीप्लेक्सिंग के लिए भी हम मॉड्यूलेशन को टेक्निक को यूज करते हैं। दूसरा क्या करते हैं, इससे हम बेस बैंड सिग्नल, यानी कि जैस जो लोअर रेंज का सिग्नल है, लोअर फ्रीक्वेंसीज ऑफ सिग्नल है, यानी कि ये 50 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं बैंड पास सिग्नल में। तो अगर वहां आ गया तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ मॉड्यूलेशन, तो आपको पता होना चाहिए कि मॉड्यूलेशन का क्या क्या एडवांटेज है। तो हमने समझा व्हाट इज द बैंडविड्थ, व्हाट इज द नीड फॉर द मॉड्यूलेशन, वी हैव अंडरस्टूड दैट। नाउ मॉड्यूलेशंस को डिपेंडिंग अपॉन टाइप्स ऑफ द फ्रीक्वेंसीज हम कैटेगराइज कर सकते हैं, सिंगल टोन या मल्टी टोन। सिंगल टोन का मतलब क्या होता है, सिंगल टोन का मतलब होता है कि मैसेज में केवल एक ही टोन ऑफ फ्रीक्वेंसी है, सिंगल टोन मॉड्यूलेशन। सिंगल टोन मॉड्यूलेशन, सिंगल टोन का मतलब क्या हो गया, अभी जो मैं वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज की बात कर रहा हूँ कि 50 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज, ये नहीं होगा। अब मेरे मैसेज को अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट करेंगे तो मेरे पास एक ही कंपोनेंट होगा 50 हर्ट्ज का। ये मेरे पास एक ही फ्रीक्वेंसी है जिसपे मैं मैसेज भेज रहा हूँ 50 हर्ट्ज। तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना टाइम डोमेन में साइनसोडियल टाइप से। ये एक सिंगल फ्रीक्वेंसी का 50 हर्ट्ज, मान लो साइन ओमेगा टी, या 2 पाई एफ की वैल्यू डाल दो 50 और टी, यानी कि साइन 100 पाई टी। ये एक सिग्नल अगर सिंगल फ्रीक्वेंसी का रिप्रेजेंट करना है तो मैं साइनसोइडल सिग्नल से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ अपने मैसेज को। तो टाइम डोमेन में मेरा मैसेज क्या होगा, साइनसोइडल रिप्रेजेंट करेगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सिंगल होगी। तो सिंगल फ्रीक्वेंसी को अगर हम मॉड्यूलेट कर रहे हैं तो सिंगल टोन मॉड्यूलेशन, और अगर उससे ज्यादा है, इस टाइप का मैसेज को मॉड्यूलेट कर रहे हैं तो ये मल्टी टोन मॉड्यूलेशन। ठीक है, मल्टी टोन मॉड्यूलेशन। लेकिन हमको पहले क्या समझना है, सिंगल टोन मॉड्यूलेशन। सिंगल टोन मॉड्यूलेशन से जो भी हम ड्राइव कर लेंगे उसी को मल्टी टोन मॉड्यूलेशन में इंप्लीमेंट कर देंगे। सिंपल है, तो पहले सिंपल से स्टार्ट करते हैं, सिंगल टोन मॉड्यूलेशन। अब सिंगल टोन मॉड्यूलेशन में सबसे पहले हमको ये बात तो हमको पता चला, पता ऑलरेडी है अभी, ये वी ऑलरेडी नो दिस पॉइंट कि वॉइस का जो लोअर फ्रीक्वेंसी सिग्नल है उसको हमको कैरियर यानी कि कोई एक हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल के ऊपर ट्रांसमिट करना है। तो लेट अस टेक कोई कैरियर ले लेता हूं मैं, जिसके एम्पलीट्यूड एसी है, कैरियर का एम्पलीट्यूड एसी है, और मैं मान लेता हूँ कि ये साइनसोडियल है, यानी कि कॉस सिग्नल ले लेता हूँ, और 2 पाई उसकी फ्रीक्वेंसी कैरियर फ्रीक्वेंसी कर लेता हूँ 2 पाई एफ सी टी प्लस 5। ये एक मैं ऐसा कैरियर ले लेता हूँ और इसको रिप्रेजेंट करता हूँ सिटी से। ठीक है, ये एक कैरियर है। अब मैं अपने वॉइस को इसी कैरियर के ऊपर दे करके ट्रांसमिट कर दूंगा, जो और आपको डायग्राम में दिख रहा है। ये मेरा एक कोई कैरियर है, मान लो ये हो गया AC कॉस 2 पाई एफ सी टी, और ये मेरा वॉइस का एक सिंगल टोन का मैसेज है, मैं इसको इसके ऊपर ऐड करके भेजना चाहता हूँ। तो इस तरीके का मेरा मॉड्यूलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस कैरियर में देखो क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। इस कैरियर के पास इसका एम्पलीट्यूड है AC, इसकी फ्रीक्वेंसी है FC, और इसका फेस है 5C। तो ये वाला पार्ट, जब हम कैरियर के एम्पलीट्यूड को अपने सिग्नल यानी मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंगली वैरी करेंगे तो इसको हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। जब हम फ्रीक्वेंसी को यानी कि कैरियर के फ्रीक्वेंसी को अपने मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंगली वैरी करेंगे तो उसको करेंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और अगर फेस को अपने कैरियर सिग्नल के अपने मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंगली वैरी कराएंगे तो हम उसको बोलेंगे फेस मॉड्यूलेशन। और ये जो कॉस का जैसे पढ़ते थे ना, साइन थीटा, थीटा क्या था, एंगल था। तो ये पूरा थीटा ही तो है, 2 पाई एफ सी टी प्लस 5 क्या है, थीटा ही तो है। तो ये एंगल है, और इसी एंगल में या तो फेस में या फ्रीक्वेंसी में चेंज करेंगे तो जो मॉड्यूलेशन होगा ओवरऑल उसको हम क्या कहेंगे, एंगल मॉड्यूलेशन कहेंगे। तो एंगल मॉड्यूलेशन के दो पार्ट हो गया, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेस मॉड्यूलेशन, और एक अलग से एम्पलीट्यूड का मॉड्यूलेशन हो गया, उसके अंदर ये सारे कैटेगरीज है, वो भी अभी हम धीरे धीरे देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। चलिए, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन अब समझ में आ गया कि हमारे पास कोई कैरियर है, ये कैरियर फ्रीक्वेंसी होगी AC कॉस 2 पाई एफ सी टी। फाइव अभी हम नहीं लेते हैं, है ना, सिंपल रहते हैं, इनिशियल फेज को हम अभी निगलेक्ट करते हैं। ये ऐसा एक कोई कैरियर फ्रीक्वेंसी है AC कॉस 2 पाई एफ सी टी। ठीक है, अभी देखो इस कैरियर फ्रीक्वेंसी का ये क्यों ले रहे हैं, ऑब्वियसली इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई है, तो इस फ्रीक्वेंसी पे हम ट्रांसमिट करेंगे तो हमें हाइट ऑफ द एंटीना बहुत कम यूज करना पड़ेगा। अभी इस चीज को मैं बार बार नहीं रिपीट करूंगा कि मैं कैरियर क्यों ले रहा हूँ बार बार। ऑब्वियसली बात है, कैरियर ले लिया, अब मेरे पास मैसेज सिग्नल है एमटी। एमटी सिंगल टोन के लिए हम इसको मान लेते हैं AM, मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड AM, और इसको हम मान लेते हैं
क्या साइन या कॉस, कॉस ही मान लेते हैं, चलो कॉस 2 पाई। कॉस के साथ क्या होता है ना, डेरिवेशंस वगैरह आसान हो जाता है। कॉस 2 पाई एफ एम टी। तो ये मेरा मैसेज सिग्नल हो गया, अगर सिंगल टोन ले रहे हैं तो। और मल्टी टोन लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरा ये वाला एक कॉस 2 पाई एफ एम टी को हम नहीं यूज कर सकते, सिंगल टोन के लिए यूज कर रहे हैं। इसमें एक ही फ्रीक्वेंसी है जिसका है एफ एम। तो सिंगल टोन के रिलेशन में हम डिराइव करके सब कुछ पता कर लेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है मल्टी टोन के लिए बस उसी कंसेप्ट पे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, यानी कि कैरियर के एम्पलीट्यूड को अपने मैसेज एमटी के एम्पलीट्यूड के हिसाब से वेरीफाई कर, मतलब चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो सिग्नल आएगा उसको हम ए एम टी बोल देते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। उसके अंदर ऑब्वियस सी बात है कि जो कैरियर है उसको हमको मल्टीप्लाई करना होगा अपने एम्पलीट्यूड से। ठीक है, अपने एम्पलीट्यूड से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि कैरियर जो है उसको हमको चेंज करना पड़ेगा। तो एसी को हम मल्टीप्लाई करेंगे कुछ ऐसे टर्म से, है ना, कुछ ऐसे टर्म से। तो मान लो कि अगर मैं डायरेक्टली करता हूँ मल्टीप्लाई इसको एम टी से, और उसके बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉस 2 पाई एफ सी टी, यानी कि मैंने एम्पलीट्यूड को बस एम टी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर जब एम टी की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो हमारा कैरियर भी जीरो हो जाएगा। तो कैरियर हमारा जीरो नहीं होगा, देयर इज ऑलवेज अ कैरियर विच इज बीइंग ट्रांसमिटेड। मैसेज आएगा तो मैसेज उसके साथ ऐड हो जाएगा। तो अब इसे बात है, थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो इसको हम ऐसे कर देंगे मॉडिफाई, 1 + के इंटू एम टी, के इंटू एम टी। अब के क्या है, सेंसिटिविटी ऑफ मॉड्यूलेटर, जिस मॉड्यूलेटर को यूज करके हम मॉड्यूलेट कर रहे हैं, दैट इज सेंसिटिविटी ऑफ मॉड्यूलेटर। k × nt cos 2 पाई एफ सी टी। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सही लग रहा है ना, कि हम एम्पलीट्यूड को ये पूरा एम्पलीट्यूड था कैरियर को, इसको हमने मॉडिफाई कर दिया, 1 + के इंटू एम टी कर दिया। यानी कि जब एम टी की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो हम वी विल गेट दी कैरियर, और जब हमारे पास मैसेज सिग्नल होगा तो वी विल गेट द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर बीइंग मॉडिफाइड इन टर्म्स ऑफ द एम टी। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखो, डेरिवेशन आपको जरूरी नहीं है आप लिखना या नोट डाउन करना, लेकिन समझ लो बस। और एक चीज और बता देता हूँ कि देखो, मेरे यूट्यूब चैनल पे ना DCIO टेक्निकल बोल करके एक प्लेलिस्ट है, उसके अंदर कम्युनिकेशन के 2-3 लेक्चर्स मैंने अपलोड किए, जिनको बहुत ही ज्यादा डिटेल में समझना है वो पार्ट भी वो देख सकते हैं। ठीक है, DCIO करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, DCIO करके। और उस प्लेलिस्ट के अंदर कम्युनिकेशन से रिलेटेड 2-3 लेक्चर्स अपलोड किए, उसमें बहुत ही ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया है सारी चीजें। लेकिन क्योंकि इस एग्जाम से रिलेवेंसी नहीं है उतना डिटेल जाने का, इसलिए मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ से अगर आप के एम टी को आप कॉस ए एम कॉस 2 पाई एफ सी टी पुट कर दो, एफ एम टी पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ए सी इंटू 1 + के इंटू ए एम, के इंटू ए एम, और cos 2 पाई एफ एम टी। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई cos 2 पाई एफ सी टी, करेक्ट। अब देखो यहाँ पर जब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 1 है तो यहाँ पर ए सी cos 2 पाई एफ सी टी आ गया, प्लस के इंटू ए एम को हम क्या लिखेंगे, म्यू। दिस इज कॉल्ड म्यू, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो म्यू इज इक्वल टू क्या है, के ए इंटू ए। इसको साइड में लिख लो, ये फॉर्मूला एग्जाम में काम आएगा। और अगर के की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो अगर के का वैल्यू नहीं दे रखा है तो इसको 1/AC भी समटाइम यूज कर लेते हैं। तो म्यू की वैल्यू कभी कभी AM/AC भी हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज मॉड्यूलेशन इंडेक्स। अब यहाँ पर ही म्यू की वैल्यू लेस देन 1 होगा तो अंडर मॉड्यूलेशन बोलते हैं। अगर म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ऑब्वियसली बात है ओवर मॉड्यूलेशन बोलेंगे। और अगर म्यू की वैल्यू 1 है तो क्रिटिकली मॉड्यूलेटेड बोलेंगे, क्रिटिकल मॉड्यूलेशन या क्रिटिकली मॉड्यूलेटेड। क्लियर है, ये चीज क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर म्यू है, म्यू को हम म्यू को म्यू एसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये म्यू और ये एसी आपस में मल्टीप्लाई होगा जब ब्रैकेट ओपन करेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा म्यू एसी कॉस 2 पाई एफ एम टी इंटू कॉस 2 पाई एफ सी टी। तो ये तो हमारा एक अलग से कैरियर है, कैरियर के साथ हम ये सिग्नल भेज रहे हैं। तो ये टोटल पूरा जो सिग्नल है इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेटेड सिग्नल, AMT। ठीक है, तो AMT यानी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज इक्वल टू कैरियर सिग्नल प्लस म्यू AC। नो, अब देखो कॉस ए और कॉस बी का फॉर्मूला होता है, कॉस ए कॉस बी, यानी कि ट्वाइस ऑफ कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, तो कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या है, इसको हाफ से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो यही चीज यहाँ लगा रहे हैं, तो इसको हाफ से डिवाइड कर देंगे, μAC/2। और यहाँ पर cos A प्लस बी कर देंगे तो cos 2 पाई FC प्लस FM/t प्लस cos 2 पाई FC माइनस FM/t।
ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर लें तो ए एम टी हमारा क्या आ जाएगा, ए एम टी आ जाएगा ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस म्यू ए सी बाई 2 कॉस 2 पाई एफ सी प्लस एफ एम इंटू टी प्लस कॉस 2 पाई एफ सी माइनस एफ एम इंटू टी। यही हमारा इक्वेशन है ए एम का। क्या आपको लिखना जरूरी है? लिख लो। याद करना जरूरी है? नहीं, याद करना जरूरी नहीं है। रीजन बिंग मैं बता देता हूँ थोड़ी देर में। अभी इस इक्वेशन को डिराइव करने का मकसद क्या है कि इसी के बेसिस पे हम सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे, एफिशिएंसी, पावर, बैंडविड्थ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये इक्वेशन लाना जरूरी था, ठीक है।